Dreams are not those which we dream in the night while sleeping, but dreams are those exactly which do not let us sleep. जो मैं अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करती हूँ और जो मैं उनसे सीखती हूँ, वो ही मेरे लिए एक मेंटोर का काम करते हैं. वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो ये तो एक ब्लेसिंग की तरह हो गया और इसको जो पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं और आई रियली लाइक्ड इट. एंटरप्रेन्योर जर्नी वाज स्वीट एंड सार. सक्सेस मेरे लिए मेंटल पीस है जिसमें मेरे को खुशी मिले. अगर मैं रेनबो के जो 7 कलर हैं उनको मैं सबको हल्का हल्का टच कर जाती हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ. फॉर मी यू टर्न इज नॉट द सोल्यूशन, नेवर. आई एम अ हीलर एंड आई विल बी सर्विंग फॉर कम्युनिटी. आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन. व्हाट आई विल से कि मैं अपने आप को लिमिट करके नहीं करती हूँ. आई एक्सप्लोर whatever sides of mine, make best version of mine. I'm very sweet, but that does not mean you can mess up with me. I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Dr. Deepika Jain. She is a multiple award-winning celebrity doctor. She is very well-known and renowned face in healthcare and fashion industry, offering more than 17 plus years of experience of earned success as committed healthcare professional working globally. She is multi-talented doctor and Miss India International, having rich experience to work well within any multidisciplinary organization. She is international health counselor and expertise in health and wellness. She is senior homeopathic physician and consultant, certified psychotherapist and personality groomer. She has been appreciated by World Book of Records, London for her contribution in service of humanity. It's a pleasure to welcome Dr. Deepika Jain to our show Amazing Mentor. Welcome Dr. Deepika. Pleasure to be connecting with you. Thank you for having me on your show. Thank you very much. So tell us about your childhood and any particular memories that you would like to share on our show from your childhood. As far as you and I are concerned, we are the kids of era of decade 80s and 90s, and that time our childhood was blessed more as compared to today's kids because we were far away from the internet. And so like any other kid, I was the same one, always more into playing and all those activities. But yes, on the weekends, I have a very memorable thing I want to share with you and the audience. On the weekends, I used to sit with my family, especially my father, and used to repair all those things which got broken in the process, or like we don't know, used to throw the things. We used to repair, like जोड़ के देखते हैं कुछ हो जाए इसका. तो we were very creative in that. So that thing I remember as a remarkable thing in my, and the same habit I carry on today also. I don't throw off the things. I try to first repair or turn it into recycle it or include some creativity into it. So that memory is very, very marked into my memory. So tell us about your educational background, schooling and higher education. Born and brought up in Chandigarh, so totally Chandigarh dream, and schooling, college, everything from Chandigarh. I have done my homeopathic from Chandigarh Medical College, and then I pursued my post-graduation MBA from Symbiosis Pune, and then I have done MD Masters in acupressure from Jodhpur, Rajasthan. And then finally, I have been certified as psychotherapist. I have done my psychology from London, UK. So this was my academic effort. Was being a doctor your childhood dream? Honestly, it was not a dream, but yes, my father wanted me to be a healer, a doctor in any of the specialty. And being a very, very sensitive child, so I chose this homeopathy. Undoubtedly, I cracked the entrance 2 times. I was selected in MBBS in Mahipal University also, dentistry also. But I used to always question my father. मैं लोगों के मुंह में जाके नहीं ऐसे देख सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ. Then he used to say, healer तो बनना है, डॉक्टर तो बनना है, तुम होम्योपैथी कर लो, वही कर लो. So then I thought कि मैं होम्योपैथी करके, because homeopathy is the origin of Germany, so I thought कि मैं MD वहाँ से कर लूँगी and then I will be settled. But you know, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं आता. So they were life just played another cards with me. So कुछ और डायरेक्शन में होम्योपैथी के बाद MBA and then acupressure. Then I have an interest in reading people mind. I was good in counseling. तो मैंने फिर वो psychology की तरफ अपना cognitive behavior की तरफ अपना रुझान किया. Then I pursued in that side. So what about your college or school memory that you would like to share?
Any notorious or mischief thing that you have done in college? I was extremely naughty during my childhood. अभी भी हूँ, because I believe कि जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है ना, वो मरना नहीं चाहिए. वो मर गया तो फिर लाइफ का एक उसका जो एक खूबसूरती होती है वो नहीं रहती है. तो थोड़ा सा मैं थी स्कूल में. तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा एक एरा था वो यही था कि स्कूल से कब आएंगे और उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हमारे बैग्स यूनिफॉर्म्स एंड यूज्ड टू गो टू प्ले अराउंड. और जब पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स जॉब करते थे, तो वो लोग आते थे तो वो वही बेचारे पार्क से बुला के लाते थे कि आ जाओ, अब तो आ जाओ घर. तो वो वाला था. लेकिन कॉलेज में एक मुझे याद है, वी यूज्ड टू बंक ऑन सैटरडेज. हमें पता था हमने बंक करना, और हमें ये भी पता था मंडे को हमको डांट पिट मतलब लगेगी प्रिंसिपल से. लेकिन हम इतने ढीठ होते थे, एंड आई वाज द लीडर ऑफ दैट गैंग. हम पहले से ही अपॉलॉजी लेटर्स, सॉरी वाली, पहले से ही बल्क में बना के अपने बैग में रखते थे, जिसमें हमको एक ही फॉर्मेट होता था, सबके सिग्नेचर होते, वी अपोलोजाइज, वी विल नॉट रिपीट द सेम. और हमें पता है कि टुमारो वी हैव टू बंक. तो ये हमारा एक पैटर्न था. तो means I was a gold medalist in academics, but that was something different. अभी भी मेरे अंदर एक वो रहता ही है कि मतलब I am the same, वो छोटे बच्चे की तरह ही है. एज में बड़ी हो रही हूँ पर वो नॉटी में still I am the same. So what about your hobbies and interests? I love listening music. I love doing dance. Dance is something which is a stress buster for me. अगर बहुत ज्यादा मेरे को कोई काम का प्रेशर या कुछ भी है तो डांस इज द ओनली थिंग कि मैं ठीक हो सकती हूँ. इट्स अ सेरोटोनिन फॉर मी. और ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग. पूरी दुनिया मुझे घूमना अच्छा लगता है. वहाँ के डिफरेंट क्यूजीन्स एक्सप्लोर करना, उनके कल्चर को समझना, डिफरेंट लोगों से मिलना, उनके माइंडसेट को समझना. दिस इज, आई रियली लाइक इट. So who was your inspiration in your early childhood? See, when we are very small kids, बहुत अर्ली चाइल्डहुड में हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो उनसे ही हम डायरेक्टली जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही हमारी इंस्पिरेशन बन जाती है. तो जैसे अभी भी हम कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे जो वो बच्चों को सिखाते हैं उनसे बच्चे नहीं सीखते हैं. जो वो बच्चे नोट करते हैं अपने पेरेंट्स के उनकी एक्ट से, वही उसको वो इम्बाइब करते हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड में आई विल से माय पेरेंट्स वर द इंस्पिरेशन बिकॉज दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. मतलब हम तो उनके आधे भी नहीं है. जैसे माय मदर, शी वॉज अ वर्किंग लेडी. उनको घर का भी करना है, बाहर का भी करना है. कभी हमने उनको एक्सक्यूज बनाते नहीं देखा, क्योंकि उनको करना है तो वो करेंगे. माय फादर वाज सेम, मैं द वेरी डिसिप्लिन गाय. अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है तो उठना है, वॉक करना है कि नहीं. अभी आप हमें ये चीजें कहोगे ना तो वी विल बी वेरी हाईलाइटेड, वी विल बी वेरी अप्रिशिएटेड. अच्छा, आप बाहर का भी कर लेते हैं, आप घर का भी कर लेते हैं. बट उनके लिए ये एक मैंडेटरी लाइफ थी एंड दे वर डूइंग इट. तो अर्ली चाइल्डहुड में आई विल से माय पेरेंट्स वर द इंस्पिरेशन फॉर मी व्हाट आई एम टुडे. तो ऑफ कोर्स उनका 90% क्रेडिट उन्हीं के ऊपर जाता है. फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो और लोगों की बायोग्राफी देखते हो या आप टीवी पे देखते हो, चीजों को समझते हो, देन आई विल से कि डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, वो मुझे काफी इंस्पायर करते थे. उनकी एक जो खूबी थी, वो जो उनकी सिंप्लिसिटी थी, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी. और मुझे लगता था कि बीइंग सच अ सिंपल एंड सोबर गाय एंड ही वाज लाइक एनीथिंग. एंड आई वुड लाइक टू कोट हिज फेमस सेइंग कि ड्रीम्स आर नॉट दोज जो हम रात को सोते हुए लेते हैं. ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच वी ड्रीम इन द नाइट व्हाइल स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज एग्जैक्टली व्हिच डू नॉट लेट अस स्लीप. जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं. लेटर ऑन फिर आप जैसे जैसे चेंज करते हो तो कोई फिक्स्ड नहीं है. कोई भी समाज में अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करता है, संघर्षों के बीच में रह के, तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है. जो नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन, दिस विल नॉट बी द फेयर थिंग. So where did you started your career journey? When I shifted to Gurgaon, then I start up my this clinic. It's a multi-speciality clinic. I started with one branch and then carried on with 2 to 3 branches further. तो गुड़गांव में शिफ्ट करने से पहले 17 साल पहले स्टार्ट किए. तो जब आपने स्टार्ट किया, what were the initial challenges and how did you overcome those challenges? First of all, I was married when I shifted to Gurgaon, and then I had this few months old baby.
जो 1 साल का भी नहीं हुआ था। तो ये एक अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक चैलेंज था, बिकॉज किसी भी काम को अगर आपने जस्टिफाई करना है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन अदर थिंग। तो वो टाइम जो था, और एक छोटे बच्चे के साथ आप उसको क्लिनिक पे कैसे लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, घर पे मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी, और आई एम इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैनेज करनी काफी टफ रहा था वो टेन्योर, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। तो ये चैलेंजेस थे मेरे। So what's that one thing that you love about your profession the most? हेल्थ इंडस्ट्री में ये होता है कि आजकल के जो पेशेंट्स हैं, अब के 15 साल पहले फिर भी शरीफ थे, अब के जो पेशेंट्स हैं ये सब गूगल से ही सर्च करके आते हैं और आके बताते हैं, डॉक्टर साहब फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब हमें डायसेंट्री है। तो भाई जब तुम पहले से डायग्नोस करके आए हो तो ट्रीटमेंट भी गूगल से ही देख लेते। तो ये होते हैं, बहुत प्यार से टैकल करना पड़ता है, बहुत स्मार्टली टैकल करना पड़ता है। एक ये चैलेंजेस है हेल्थ इंडस्ट्री में। दूसरा, कंपटीशन बहुत हो गया है, और कंपटीशन में ये पेंडेमिक के बाद से आपको बताएं, लोगों में ना एक जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, एलोपैथी में जाएं, आयुर्वेदिक में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, कौन से होलिस्टिक डॉक्टर के पास जाएं जो हमारी जड़ से ही हमारा सारी बीमारियों का निवारण कर दे। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर उनके लिए चाहिए। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा लोग समझने भी लग गए हैं कि what they should choose and how they should, तो वो सब चीजें समझने लगे। बस ये है, हेल्थ इंडस्ट्री में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मेंटोर कौन है आपका? मेंटोर जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग आप कहेंगे, और मैं ये पर्सनली मैं कहती हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करती हूँ और जो मैं उनसे सीखती हूँ, वो ही मेरे लिए एक मेंटोर का काम करते हैं। जो मुझे कोई समझाता है, या जो जैसे कोई बड़े होते हैं, कोई उनके कुछ एक्सपीरियंस है, वो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, बट आई डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। I use my all discrimination powers। क्या सही मेरे लिए हो सकता है कि किसी और के लिए वही चीज बहुत अच्छे से काम करती हो, पर मेरा जो एनवायरनमेंट है या जो मेरी सराउंडिंग है, हो सकता है मेरे लिए वो चीज उतनी कारगर ना साबित हो। तो मैं सुनती सबकी हूँ, पर करती अपने दिमाग से और अपने थॉट से करती। So what's your take on work from home culture? I think it's a fabulous one, especially for the women who have kids and family to take care of, और जो मतलब बाहर जाके, क्योंकि देखिए आप बाहर जा रहे हैं तो आपको फिर घर का सब कुछ भूलना पड़ेगा, and you have to be dependent on someone at home। तो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो ये तो एक ब्लेसिंग की तरह हो गया, और इसको जो पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आई रियली लाइक इट। फॉर मी इट्स अ गुड वन। फॉर द विमेन लाइक मी, जो जिनको काम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करके चलनी है, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है, वर्क फ्रॉम होम करने से आप अननेसेसरली एक ट्रैफिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं बाहर। अगर कोई चीज घर से हो सकती है तो उसके लिए आपको उठ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक तो हम उससे पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन है, चाहे आप इतना ट्रैफिक अननेसेसरली, अगर हो सकता है घर से मीटिंग या कोई, जैसे अभी हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे आपके पास उठ के स्टूडियो पे आना है, या यू नीड टू सेट अप अ स्टूडियो। आइडिया इज टू आपको वो वॉइस जो है उस इंडिविजुअल की, वो मास ऑडियंस तक पहुंचाना है कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो आपका एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, उसके लिए यू नीड नॉट टू क्रिएट सो मच एंड हल्ला हुल्ला टाइप्स। तो ये वर्क फ्रॉम होम कर लो या डिजिटलाइजेशन में कह लो, ये हमारे लिए एक वरदान की तरह ही साबित हुआ है पेंडेमिक में। So what's your definition of success? For me, success is a whole package, जिसमें I am doing financially very good. I am contributing to my community, to my society, to my nation, and to my people in some way. I'm giving them back some in return, and then I'm balancing my professional and personal life. सक्सेस मेरे लिए मेंटल पीस है, जिसमें मेरे को खुशी मिले। मेरे लिए फोर्ब्स में आना सक्सेस नहीं है, मेरे लिए केवल सिर्फ अपने लिए ही सोचना सक्सेस नहीं है। अगर मैं रेनबो के जो 7 कलर हैं उनको मैं सबको हल्का 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 टच कर जाती हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। मुझे एक में ऐसा करके नहीं, वो नहीं है। सो इट्स अ होलसम पैकेज फॉर मी। So what's the role of hard work, luck and smart work in success? Hard work teaches you experience.
ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा, आपको मेहनत करने से आप जो आपके प्लस और जो माइनस पॉइंट्स हैं, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ्स हैं, उसको हाईलाइट करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि सोना उसको पकाओ, उसको तब जाके वो सोना बनता है। तो हार्ड वर्क का वो रोल है। स्मार्ट वर्क ये है कि हमें हमेशा एक ही उसमें आंखें बंद करके नहीं करना है। वी नीड नॉट टू वर्क लाइक अ डॉगी। हमको ये भी समझना है कि अगर कोई चीज 1 घंटे की बजाय 10 मिनट में हो रही है तो एक स्मार्ट एटीट्यूड के साथ ही हो रही है, एक स्मार्ट एप्टीट्यूड के साथ हो रही है। साथ में अगर हम लक जिसे बोलते हैं 5 या 10% उसका कंट्रीब्यूशन हो जाए तो वो सोने में सुहागे वाली बात। So if you were able to get hold of time machine, which phase of your life would you like to roll back? माई चाइल्डहुड डेफिनेटली, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता था, सिर्फ हमें ये पता होता था कि हमें खाना खाना है, वो भी पेरेंट्स बुला बुला के खिलाई देते थे किसी तरह से। इसके अलावा मेरे को पर्सनली आई फील कि ये सब हर फेज आपका बहुत ही अच्छा होता है, आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है, लेकिन चाइल्डहुड जो होता है वो बेस्ट। So how do you balance your personal and professional life? अपने लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ, आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज द थिंग्स बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अगर जरूरी है और बहुत ही है तो वो ऊपर रख देती हूँ। उससे थोड़ा नीचे आ जाता है कि अर्जेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, चलो उसको नीचे, तो प्रायोरिटाइज कर देती हूँ अपनी चीजों पे। इसके अलावा मैनेजेबिलिटी जो एक स्किल है वो मैं कह सकती हूँ आई एम ब्लेस्ड विद दैट। तो चाहे वो टाइम मैनेजेबिलिटी है, चाहे अपने स्टाफ के साथ मैनेजेबिलिटी है, वो चीजों को मैं अपना एक स्ट्रेंथ कॉर्नर मानती हूँ, तो उसके साथ मेरा हो जाता है। लाइक नाउ माय सन इज टीनेजर, तो अभी बैलेंस्ड हो जाता है ना। मतलब मेरे लिए ठीक है कि वो अगर घर पे है सो आई कैन कोऑर्डिनेट विद हिम ऑन कॉल एंड तो ये सब छोटी चीजें हैं। न्यूक्लियर फैमिली है तो ज्यादा इतना नहीं, मेरे को काम का इतना स्ट्रेस नहीं है घर पे। बाकी प्रोफेशनल लाइफ पे माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव टू मी। मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि मैंने अकेले कुछ किया। ऑफ कोर्स मेरा एक थॉट प्रोसेस, कोई ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में होता है, लेकिन उसको प्लेट पे जो सर्व करना है, वहां तक जो पहुंचे, उसके लिए आपको एक टीम, एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सब फैक्टर्स मेरे साथ होते हैं। तो दिस इज द थिंग। So how difficult and easy was it to start your entrepreneur journey? Entrepreneur journey was sweet and sour. Sweet in a sense you get excited. मेरा अपना का कुछ काम होगा, I need not to work under someone. मेरे skills होंगे तो वो मेरे काम में लगेंगे, अच्छे हों बुरे हों छोटे हों बड़े, I will be learning from my. So this was the sweet part. जो सार पार्ट है वो ये होता है, आप अकेले निकल तो जाते हो झंडा उठा के हम कर सकते हैं, बट जो चैलेंजेस सामने आते हैं उसमें फाइनेंशियल चीजें होती हैं, उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, सबको अपने अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं। आप उनसे एक्सपीरियंस या सीखने के लिए यार ये बताना वो बताना, बिकॉज यू कैन नॉट बी सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता होगा। यू कैन बी गुड इन समथिंग, कुछ पार्ट आपका रह जाता है। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर डिजाइनिंग ग्राफिक्स, इसके लिए आई नीड टू हायर सम पीपल, मेरे एक टीम होनी चाहिए। मेरी आइडियाज में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो एक टीम वर्क के साथ आप चलते हो तो ये एक सार पार्ट हो जाता है कि उस टाइम तो बहुत लगता है कि यस एंथुसियास्टिक, हम पता नहीं दुनिया ही फतेह कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब हम बैठते हैं करने के लिए तो फिर एक बार कहते हैं पहले सोच ही लेते हैं। तो दिस इज द सार पार्ट। तो जो सार पार्ट होता है उसको ओवरकम कैसे करते हो आप? उसको ओवर करती है कि अब तो निकल गए हैं, तो फॉर मी यू टर्न इज नॉट द सोल्यूशन, नेवर। अगर मैं चल पड़ी हूँ तो फिर मैं करके ही पूरा करूंगी ऐसा। और मेरा जो ये प्लस पॉइंट ये होता है कि आई नेवर कॉम्पीट विद अदर कॉम्पिटिटर्स। मेरा अपना होता है कि मेरे को अपने आप को बेस्ट कैसे करना है, मैं कल क्या थी और आज मैं क्या हूँ, सो इन कमिंग ईयर्स में आगे क्या होंगी, तो उसमें मुझको वो एक सक्सेस वाली फीलिंग मिलती है। ऐसे तो आप कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो स्काई इज द लिमिट, फिर तो आपको कुछ है ही नहीं है, आप कभी भी संतुष्ट, एक कंटेंट फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं अपने आप से देखती हूँ, मैं 15 साल पहले कैसी थी, 20 साल पहले कैसी थी, चाइल्डहुड में कैसी थी, आज कैसी हूँ। कल जब बच्चा कॉलेज में चला जाएगा उसकी अपनी लाइफ होगी, व्हाट आई हैव टू ऑफर टू माई सेल्फ और टू माई कम्युनिटी। तो वो चीजों के साथ आप एक थॉट प्रोसेस के साथ चलते हो ना, तो वो आप कुछ ना कुछ, आपकी पेस स्लो है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग बीइंग अ वुमेन, तो आपकी पेस स्लो है। हो सकता है कि मैं उस पेस के साथ नहीं आगे जा रही हूँ जो मैं सोचती हूँ, लेकिन मेरे को ये भी एक मन में एक वो है सेटिस्फेक्शन है, एटलीस्ट आई एम टेकिंग केयर ऑफ अ टीनेज बॉय, आई एम टेकिंग केयर ऑफ। तो वो मैंने बोला ना, मैं रेनबो के सारे कलर्स को टच कर रही हूँ, लेकिन अपनी ही पेस और अपने ही समझ के साथ तो मैनेज करती हूँ।
So what major differences do you see in work culture of UAE and India? I chose UAE for a reason. They respect a woman a lot. And there no means no. And there is no further argument. The best part is once you are out of your office, there will be no personal or professional text to you. अब ये काम भी करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है. जैसे I was in a government job, so it was सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक. आपने 2 बजे पंच कर दिए तो 2:01 पे आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा आपका ये काम रहता था, आपको ये करना था. बस 7 to 2 दे विल टॉक टू यू अबाउट द वर्क और व्हाटएवर दे वांट टू. और उसके बाद नहीं. इंडिया में कैसा है, यहाँ पे तो मुझे लगता है टाइम होता ही नहीं है. There is no time because what I'm seeing from my husband, I'm just talking. वो जो देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ. तो इनका कोई टाइम नहीं होता. सुबह बच्चों का स्कूल खुलने से पहले तो इनका ऑफिस खुला होता है और सब जो दुनिया सो जाती है तब भी इनके कस्टमर नहीं खत्म हो रहे होते. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये मतलब कैसे पता आए. तो मतलब ठीक है एज अ वुमन तो आप बैलेंस कर लोगे. ये बाकी मुझे कॉर्पोरेट कल्चर और इंडिया का कल्चर नहीं समझ आता. आई हैव नो आइडिया कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे कैसी होती होंगी. बट यस यूएई में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है और दे अप्रिशिएट योर वर्क. इफ यू हैव डन समथिंग दे विल एक्चुअली अप्रिशिएट यू. सो आई रियली लाइक वर्किंग देयर. What all services do Elatus Technology Private Limited provide? It was a combination of 3 of our directors. I was from the health sector, other one was from the software solution, another one for the marketing side. So we have made a product also that was called tracking device. It was used for kids. जब वो बहुत पहले हमने बनाई थी किड्स के लिए ट्रैकिंग डिवाइस बनाई थी. ओल्ड पीपल जिनका थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम होता है या घर से बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस ही चाहे आप वॉच में रख लो चाहे आप बैग में रख लो तो उसके लिए. सो बेसिकली वी ऑफर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, चाहे वो आपके हेल्थ इंडस्ट्री से है या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, कोई ऐप बनानी है, कुछ बनानी है. सो Elatus डू दैट वर्क. So you are founder of 3 different vertical companies. One is in event, another is in technology space, and third one is in healthcare. So how come so vast difference in all these categories? Because I myself is the person I told you, I like variety. And I think कि ऐसा नहीं होता कि ये जो हमारा पुराने वाला जो थॉट प्रोसेस था ना कि आप इंजीनियरिंग कर लो फिर पूरी जिंदगी. अच्छा मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कंप्यूटर में की है, कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर की ही डोमेन में आगे जॉब कर रहे हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में गया होगा, कोई इधर गया होगा. सो हम विद द चेंजिंग टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अडेप्ट एंड टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है. तो जहां जहां आप जैसे आपने ग्रेजुएशन एक उसमें सब्जेक्ट में कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उतने ही लिमिटेड हो या आपका एक जो विजडम है उतना ही है. आप टाइम के साथ अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करते हो और करना भी चाहिए. उसमें आप अगर आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो I prefer like working for myself rather than working for certain other organization, क्योंकि उनके लिए मैं justify नहीं कर पाऊंगी उतना टाइम. जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई गिव प्रायोरिटी टू माई फैमिली और मेरे को प्रोफेशनली भी कुछ करना है. तो मेरे लिए अपना खुद का काम जो होता है मेरे लिए एक अच्छा है. जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिस एरा में जिस सदी में हम हैं, इसमें आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप मॉडल हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे. आप और बाकी बात आती है आपकी हेल्थ इंडस्ट्री की, तो मेरा तो वो क्वालिफिकेशन है, वो तो मेरी चलेगी ही चलेगी. आई एम अ हीलर एंड आई विल बी सर्विंग फॉर कम्युनिटी. फिर आती है इवेंट कंपनी की. इवेंट कंपनी का जो है कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में इसलिए आया था बिकॉज इंसिडेंटली आई वॉन्ट 2 पेजेंट्स, मिसेस दिल्ली ग्लोबल एंड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल. तो जब मैं उस पेजेंट में थी मुझे को सडनली ऐसा लगा कि कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जो आ तो जाती हैं पर एक हेजिटेशन उनके माइंड में होती है, स्पेशली जब आपका ऑर्गेनाइजर जो है या एक मेल स्टाफ है वहां पे, उनको थोड़ी सी एक हिचक रहती है. तो मैंने कहा यार मैं इतना सब कुछ कर लेती हूँ तो एक इवेंट कंपनी कर लेती हूँ. इसमें क्या होता है, एक आप ना ग्लोबल इश्यूज को हाईलाइट करने का मेरे को था कि आप
जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो और आप अपनी कोई बात कहते हो तो वो मासेस तक बहुत आसानी से और बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंच जाती हैं। तो फिर मैंने एक ये इवेंट कंपनी का सोचा था और इसमें मैं जितने भी हमारे ग्लोबल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करती हूँ, चाहे वो आप फैशन शोज हो, ब्यूटी पेजेंट्स हो, अवार्ड शोज हो या फिर कोई इनैक्टमेंट्स हो, तो किसी भी वे में, चाहे आपके सेमिनार्स हो, वेबिनार्स हो, कॉफी ऑन टेबल हो, जिसमें हम जो हमारे बुद्धिजीवी हैं या जिनको कोई बात अपनी कहनी है और मुझे वो मास ऑडियंस तक पहुंचानी है, सो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया बस। और उसमें मैं क्योंकि वो मेरे एक हॉबी और इंटरेस्ट में आ जाता है, बिकॉज आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, डांस एंड ऑल दैट। और शुरू से ही मैं एक डिबेट में, उसमें ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ही एक्टिव रही हूँ। तो ये मेरा एक उसमें रुझान, ये हॉबी के लिए आप कह लो। जो हेल्थ वाला है वो आप कह लो वो एक क्वालिफिकेशन है, इसलिए मिसमैच थोड़ा सा आप कह सकते हो। लेकिन आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन, व्हाट आई विल से कि मैं अपने आप को लिमिट करके नहीं करती हूँ। आई एक्सप्लोर व्हाटएवर साइड्स ऑफ माइंड, एक बेस्ट वर्जन ऑफ माइंड। So what are your roles and responsibilities as founder and CMD Mega Cosmos? Being a founder of a company, जो मेरा एक अपना दायित्व भी बनता है और जो मेरी ड्यूटी भी होती है वो ये होता है कि सबसे पहले काम बाद में होगा, लेकिन जो मेरे अपने स्टाफ हैं उनके प्रति जो मेरा एक दायित्व है कि वो दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली, उनको एक एनवायरनमेंट अच्छा मिले। उसके बाद आई वेलकम ऑल द आइडियाज फ्रॉम एवरीबडी। एक टीम की तरह हम काम करते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, तो मेरा काम ये होता है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार वो आई है, ऐसा नहीं लगता। हम सब एक ही उस पे बैठ के, एक लेवल पे बैठ के ही काम करते हैं और मेरा काम होता है फिल्टरिंग करना। अगर कुछ ऐसा है तो उसको टॉप पे लेके जाए, कुछ बाद में सोचा जा सकता है उसको बाद में लेके जाए। सबके बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट बना रहे एंड एवरीबॉडी शुड फील होमली। तो वो एक वैसा वाला एक जो एक ड्यूटी होती है वो मेरी वो रहती है। So what are good and bad health practices? वी ऑल नो दैट अभी जब से OTT बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया पेंडेमिक में, तो बिंज वॉचिंग ना करें। दिस कम्स इन द बैड हैबिट। आपकी सीरीज चल रही है, आई डू अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्ट बन रहा है, एक दो एपिसोड्स के बाद वो अगले दिन भी देखा जा सकता है। बिंज वॉचिंग से क्या होता है, हमें ना वो इंसोम्निया, एक वो हमारा साइकिल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज अवॉइड दिस थिंग। थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर वर्कआउट करें, चाहे वो आप ब्रिस्क वॉकिंग सुबह करें, चाहे वॉकिंग किसी भी वे में, एक फिजिकल एक्टिविटी को लेके आए। आई अंडरस्टैंड सबके घर में हेल्पर्स हैं, सब कुछ है, इसी की वजह से हमारे शरीर में ना जंग लगता जा रहा है। थोड़ा सा हिले डुले, अगर फोन कॉल पे हैं तो वॉक करें। इसके अलावा अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ही हेल्दी हो जाएंगे। वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, उनको अच्छे से गर्म पानी में वॉश करें और उसके बाद ही उनको यूज करें। ऐसा ना हो कि वेजिटेबल्स के नाम पे फिर आप उसके ऊपर जो केमिकल्स लगा हुआ है फिर आप वो ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के मैंने साथ साथ ही बता दिया, सब तालमेल चलता है। अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान दें। हेल्थ या वेलनेस जो है वो सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं होती कि हम दिख कैसे रहे हैं, हम ज्यादा पानी पिएंगे हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमारी किडनी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। इसके अलावा हमें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना है। अगर आप मेडिटेशन पे कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो करें। नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ टाइम तक अपने मोबाइल या ऐसी कोई भी डिवाइसेस है उससे थोड़ा टाइम, 1-2 घंटे दिन में दूर रह के अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, पर भी तवज्जो करें। जस्ट सिट फॉर 15-20 मिनट्स एटलीस्ट, थिंक फॉर योरसेल्फ, डूइंग व्हाट्स योर पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। अपने लिए भी सोचे, हर टाइम भागना जरूरी नहीं है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का अगर सामंजस्य बना के रखेंगे तो आई थिंक वी हैव फुलफिल्ड दैट पर्पस जिसके लिए हम यहाँ पे आए। So what are the advantage and disadvantages of allopathy, homeopathy and Ayurvedic medicines? तीनों ट्राई की है। एलोपैथी में आप देखिए मेडिकल्स को लाइफ सेविंग में आप कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी है उसमें कर सकते हैं, सर्जरी में यही एक वो चीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन अब इसका नेगेटिव पॉइंट या ये कह लो वीक पॉइंट या लिमिटेड पॉइंट ये है कि हम लोगों में पेशेंस लेवल खत्म नहीं है। जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाए उस चक्कर में हम अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी मतलब हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल भी वो नहीं देते हैं कि यार थोड़ा इम्यूनिटी भी खुद की काम कर ले।
उसको थोड़ा सा कष्ट नहीं देंगे, मतलब थोड़ा सा सहन कर लो, नहीं, वो हम कहेंगे चलिए यार 2 दिन और एंटीबायोटिक खा लो। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंट होने लग जाती है। तो ये एलोपैथी वाली साइड पे है, ये हम सबको पता है, राइट। अब आ जाती है होम्योपैथी वाली साइड पे। होम्योपैथी है जर्मनी के ओरिजिन। ये हमारी जो मेडिसिन है वो प्लांट्स, एनिमल्स, केमिकल्स, वो सब में से उसका बहुत ही मिनिमल पार्ट लेके उसमें बनाते हैं। एंड वी वर्क ऑन मोर ऑन द क्रॉनिक साइड ऑफ डिजीजेस जो बहुत टाइम से है, उनको जड़ से खत्म करना। और ये एक है कि इसमें हमारे में साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये उसके साइड पे होम्योपैथी वर्क करता है। फिर अब आपका आ जाता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक हमारी इंडियन की ओरिजिन है। हमारे जो शुरू से, मतलब हमारी किचन आदि तो आयुर्वेदा से ही भरी हुई है, ठीक है। चाहे आप हल्दी ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, सिनामन ले ले, तो ये मतलब किसी ना किसी वे से बाय डिफॉल्ट ही हम आयुर्वेदिक तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं। बचपन से हमारी मदर्स हमारे साथ स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है। तो हम बेसिकली वी आर टेकिंग ऑल द पैथीज कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। लेकिन अब आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी हैं, तो मैंने आपको तीनों के लाइन में बता दिए। ये इसके एडवांटेजेस है और ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इमीडिएटली अगर कुछ आपको जैसे बेसिक कुछ स्टार्ट होता है, डू नॉट रश फॉर एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली। खुद से सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर सॉल्ट कुछ लिमिटेड डिसीजेस के लिए ही बनाया गया है। ये नहीं सोचे अच्छा वो फलाने बंदे ने, पड़ोसी ने ले लिया था, उस नेबर ने ले लिया था, तो ये तो मेरे ऊपर भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। इससे आप अपनी बॉडी को और ज्यादा रेजिस्ट करवा रहे हो कि जब वो आपको एक्चुअल में मेडिसिन चाहिए होगी तब वो आपके ऊपर उतनी कारगर नहीं साबित होगी। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी हर पैथी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स, उनकी लिमिटेशन है। हमको एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए चल रहे हैं। वी नीड नॉट टू ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ज्यादा वो है। अभी इमरजेंसी है जहां पे सर्जरी ही होनी है, हमें ऑफ कोर्स वी विल गो टू अ सर्जन। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान लें बहुत टाइम से कोई ल्यूकोडर्मा का केस है, बहुत टाइम से क्रॉनिक अस्थमा है, बहुत टाइम से जो आपने इधर वाली पैथी से भी ट्राई कर लिया, इधर वाली पैथी से भी ट्राई कर लिया और आराम नहीं आ रहा है, और मेडिसिन खाते हैं तो ही ठीक रहते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं और रिलैक्स कर जाते हैं, देन ट्राई फॉर होम्योपैथी। वहां पे एक मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। आपका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज है, या आप एक नेचुरल उसमें आप सोचते हैं, वो फिर आप आयुर्वेदिक उसमें ट्राई करें, वो उनकी पैथी है। तो सबका अपना अपना वो है। आपको बस बीमारी के अकॉर्डिंग पैथी चूज कर लें। अगर सही बीमारी पे सही पैथी चूज कर लें तो फिर वही एक आई थिंक जो इसका लास्ट वन लाइनर आंसर है वो यही है। So how important are awards to you, and what was the first award that you have received? When we do something and we get appreciated, of course we feel good. We are all human beings. हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसे हो जाता है, कोई appreciate करते हैं, तो awards matter and they motivate you. फर्स्ट अवार्ड तो आई रियली डोंट रिमेम्बर मुझे पहला कौन सा मिला था, लेकिन जो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने जब अप्रिशिएट किया था तो उसमें मुझे लगा था कि हाँ अब कुछ कर लिया है। बाकी फर्स्ट एज अ प्रोफेशनली तो बहुत साल हो गए, 17 साल की प्रैक्टिस है, तो 16 साल आई रियली डोंट रिमेम्बर माय फर्स्ट अवार्ड प्रोफेशनली। बट हाँ, जो स्कूल में पहला जो ट्रॉफी मिली थी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पे मेरे को मिल गई थी, 8th स्टैंडर्ड पे। दैट वाज समथिंग व्हिच इज स्टिल क्लोज टू माय हार्ट। So what advice would you like to give to students who want to plan their career in health industry? मेहनत बहुत है, फुल डेडिकेशन है। माइंड में ये लेके चलें कि आप जब अपना इस एंट्रेंस में या उसमें जा रहे हैं तो ये एक तपस्या ही है, ये कोई एक खाली डिग्री नहीं है। इसके अलावा आपको ये मन में ना खुद से होना चाहिए कि आई विल बिकम अ फ्यूचर हीलर। जब आप हीलर बन रहे हैं तो वो हीलिंग वाली आपके अंदर से खुद से एक क्वालिटीज और एक शिद्दत होनी चाहिए कि सिर्फ यस वी आर वर्किंग फॉर फाइनेंसेस, डेफिनेटली घर भी हमें चलाना है, सब कुछ है, समाज को भी प्रोग्रेस करवानी है, लेकिन समाज के प्रति एक दायित्व भी है हमारा, उसको ना आप भूलें। आई पर्सनली डू लॉट्स ऑफ हेल्थ कैंप्स एंड आई गो टू रूरल एरियाज टू अवेयर एंड एजुकेट वुमेन ऑफ विलेज about the personal hygiene, menstrual hygiene. तो इसके लिए आई एम नॉट पेड, मुझको कोई सैलरी या वो नहीं मिलती है, बट ये मेरा एक अंदर से मुझे लगता है ये जैसे सबके अपने अपने
प्रोफेशंस में कुछ अपनी एक ड्यूटी होती होगी, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स को कभी भी, अभी हमारे टाइम मिलता है, कुछ मिलता है, तो हमें कुछ समाज के लिए भी कुछ कर देना चाहिए। तो अगर आप में वो जज्बा है, कुछ है, तो आप तभी ये प्रोफेशन को आप चूज करें कि खाली ऐसा नहीं कि यार मैंने एंट्रेंस क्लियर करना है और मुझे बहुत बड़ा सर्जन बनना है और उसके बाद इफ द थिंग्स आर कमिंग। अब जरूर कभी ना कभी मतलब अपने लाइफ में ये एक अपना प्रण लेके चलना कि कभी भी चांस मिले तो वी विल बी हेल्पिंग पुअर पीपल फॉर फ्री सम टाइम, ये चीज लेके चलना। बाकी होशियार बच्चे एंट्रेंस क्लियर भी कर जाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, फिर वो अब बड़े होके हमारा भी इलाज करेंगे, सब होगा, लेकिन उनमें एक विनम्रता, एक हम्बलनेस, डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है, उस चीज को ना भूलें। So do's and don't while starting your career journey. डूज में पहले पॉजिटिव में ही बात करते हैं। डूज में ये है, कलेक्ट योर सेल्फ when you are into your clinic or when you into the chair of your hospital, collect yourself। अपनी जो आपकी पर्सनल कुछ भी है वो आप घर पे छोड़ के आ रहे हैं, बिकॉज देयर यू आर अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो लोगों के दुख तकलीफ दूर करने के लिए आप वहां पे बैठे हैं, तो आपके ऊपर कोई सरेंडर कर रहा है अपनी पूरी की पूरी वो चीज, तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। ये एक पहला डू होगा। दूसरा होगा, जब आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो आप अपने जो गैजेट्स हैं या जो भी आपका मोबाइल है, ये नहीं, आपने ये नहीं देखना कि ये तो बहुत सिंपल केस है, इसमें क्या है, साथ में आप कुछ लगे भी हुए हैं, और वो ऐसा नहीं करना। फोकस्ड, एवरी केस इज इक्वली इंपॉर्टेंट केस, चाहे वो रिपीटेड केस ही क्यों ना हो, आपने एक पर्टिकुलर बीमारी के 100 पेशेंट ही क्यों ना देख लिए, टेक एवरी केस एज एन इंडिविजुअल एंड अ न्यू केस। ये चीज का ध्यान रखें आप। और अपने प्रैक्टिस को, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कीप सेइंग टू द न्यू कमर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज, और जो टाइम के साथ जो न्यू टेक्नोलॉजीज या नई चीजें आ रही हैं उसके लिए अपडेटेड रहें। सिर्फ किताबी कीड़े बन के ना रहें कि किताब में जो लिखा था बस वही पढ़ लिया, उसके ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, ऐसे नहीं है। टाइम के साथ जैसे जैसे हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक प्लैनेट ही कुछ और बन रहा है, तो अपने इसको विजडम को खोले, दिमाग को खोल के सब कुछ चीजों को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट ना रिसर्च साइट पे भी करें। ये डूज में ध्यान रखें, एक मगअप डॉक्टर की तरह नहीं बैठ जाए। डोंट में क्या है, अगर आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है या आपको एक गुड हीलर बनना है, जब आपके पास पेशेंट आता है आप उसकी सबसे पहले सुने, उसकी बात काट के अपनी राय एकदम, वो आपके पास आया है अपनी व्यथा बताने के लिए, उसको सुन ले, कोई बात नहीं, इट टेक्स 5 मिनट, बट प्लीज लिसन। उसकी हिस्ट्री एकदम जस्ट टू फिल अप द फॉर्म, वो वाला काम नहीं करें, कल क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, वो है, कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है उसका, तो प्लीज उसको सुने आप। हो सकता है 5 मिनट वो आपको सिर्फ अपनी बात कर ले और 50% वो वैसे ही ठीक हो जाए। सो लिसनिंग टू अ पेशेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट में ये मत करें कि आप सीधा सीधा बस आपने नाम ये वो सबको भर के उसको मेडिसिन दी, आपको समझ आया, उसने बोला पेट में दर्द है, पेट की दवा दी और वो चला गया। ये नहीं करना है। देन यू विल नॉट बी अ गुड और अ कंप्लीट हीलर। आपको हीलर बनना है, डॉक्टर के साथ हीलर बनो, ठीक है। डोंट में अननेसेसरीली पेशेंट्स को टेस्ट मत चिपकाओ। बार बार बोलती हूँ, अननेसेसरली अपने डायग्नोसिस को ठीक करो, अपनी डायग्नोसिस को इम्प्रूव करो। लगता है जरूरी है तो ही करो। आप पेशेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर, एडुकेटेड, सब पे मजा आता है, एक बार आएंगे दूसरी बार नहीं आएंगे, तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट। अगर टेस्ट जरूरी है तो ही करें, बस यही होता है। बाकी तो जैसे मैंने आपको बोला, डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होते हैं। वी नीड टू ट्रस्ट देम एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू क्योर द पेशेंट। So how to start your entrepreneurship journey and what all things you should keep in mind while starting your journey? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कम होगी उतना आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इजी और वो फ्रूटफुल साबित होगा। टाइम कम लगेगा एक पर्टिकुलर पड़ाव पे पहुंचने के लिए। ये जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप टाइम पर मैरिज ना करें, टाइम पर बच्चे ना करें, ये ना करें, लेकिन कोई भी चीज है उसको आपको पूरा 100% होना वहां पे बहुत जरूरी है। जब आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, आप अपना 100% नहीं दे पाते उस चीज को, तो वो एक डिफिकल्ट चीज बन जाती है। So now we will start our rapid round. हाँ जी, प्लीज। Your favorite actor and actress?
कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ श्रीदेवी फ्रॉम द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो उनकी बबलीनेस है वो मुझे बहुत पसंद Your favorite color, है. रेड. your favorite destination. स्टिल हैव टू विजिट, बट स्कॉटलैंड मैंने देखी है तो मैं स्कॉटलैंड को ही रिकमेंड करूंगी दोबारा से. How would you define success in one line? मेंटल पीस. Your favorite brand, आई एम नॉट ब्रांड फ्रीक. Whatever is best for me, I'll take it that. things in your wish list. Travel whole world at least once. पूरे का पूरा घूमना है planet. Your dream home, बाहर दूर पहाड़ों में जहाँ पे झरना बह रहा हो, बहुत ग्रीनरी हो, कोई पोल्यूशन ना हो, घर हो, मैं हो और मेरी फैमिली हो, बहुत भीड़ भड़ाके से बहुत दूर. if not doctor, then what? Entrepreneur for definitely. कुछ ना कुछ बिजनेस में ही. At last, one line that defines you. I'm very sweet, but that does not mean you can mess up with me. So thank you very much for your time, and it was pleasure talking to you and listening to the advices that you have shared, especially the pros and cons of practices in medical line. It was completely an absolute pleasure talking to you, and I really enjoyed it. Thank you so much for inviting me to this superb journey of your channel, and it's an honor for me. Thank you so very much. Thank you. Thanks for watching Amazing Mentor. Don't forget to subscribe and hit the bell button to get regular updates.